News, views, voices of the global Indian community. India abroad. Welcome to Ayurveda conference at Arsha Vidya Gurukulam, which is happening on 21st to 23rd, in which there are lecture on Ayurveda introduction and wellness through Ayurveda. Professor and former Dean Department of Medical Chemistry, Faculty of Ayurveda, यामिनी भूषण त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है. वेलकम टू यूएसए एट आर्षा विद्या गुरुकुलम. त्रिपाठी जी हमें आज आयुर्वेदा के बारे में बताएंगे कि हाउ आयुर्वेदा हैव हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया एंड आयुर्वेदा इज ए being the word spread all over the world now. A lot of people in USA, not even Indian, American also follow, do Ayurveda, preventive medicine treatment, and take, Ayurveda medicines also. So let's welcome Yamini Bhushan Tripathi ji. Thank you very much. The first time Ayurveda conference is being organized here at Gurukulam in USA, and I am thankful to Rakesh Sharma ji who has hosted this program. This program is mainly focused to understand and to propagate the objective of Ayurveda towards its wellness. You know, Ayurveda is not only a medicine, it is a way of life also. It is an integrative approach. The main objective of Ayurveda is swasthasya swasth rakshanam, aturasya vikas prasannam cha. It means a healthy man should remain healthy for 100 years and a diseased person should be treated. Now, according to the healthy man for 100 years, it is a very subjective. All the sense organs should be active for the 100 years. Then only it is a healthy life. Now the question rises how Ayurveda is going to help. Then it says there are three sub-pillars of wellness: Ahar, Nidra and Brahmacharya. Means food, sleep and code of conduct. Code of conduct, that's why I said the food habits, lifestyle, all these things are covered. So only giving a medicine is not Ayurveda. If you are talking of Ayurveda, you have to consider all the three. And another important thing I want to mention, that is the method of treatment. Maharshi Charak has described three methods. One is the Deva Vyapashraya, believe in the God, spiritual healing which is called. Second is the Sattva Vajaya, confidence building, psychological. And third is the Yukti Vyapashraya. And Yukti Vyapashraya means some medicine and diet. And this also considers the procedure also, like Panchakarma therapy, naturopathy, everything is covered. So when we talk of Ayurveda, so don't feel that only herbal or some this decoction, churan, this is Ayurveda. This is a part of the Ayurveda. And if you are considering all the three things, and then only you will be healthy. And another, one more important principle of Ayurveda I would like to mention, that in Ayurveda there are 8 branches. Ashtanga Ayurveda. So 3 branches are only for the preventive care: Rasayan Vigyan, Vajikaran Vigyan and Bhut Vidya Vigyan. These things are very important for your wellness. And 90% people in the society are healthy. They want the healthy life for 100 years. So prevention comes here. Prevention is better than cure, what WHO says. We are also saying that prevention, but what means? Means lifestyle, food habits. And then, if not managed by that, then medicine. In the medicine, it comes herbal as the primary. If not, then herbal mineral preparations. If not, then animal products. All the three things are covered under this. So this is the way how we are going to treat. And in this conference, we are going to talk mainly about the non-communicable diseases. Because non-communicable diseases covers diabetes, blood pressure, heart disease, obesity, autoimmune disorders, even cancer. They are the non-bacterial, non-infectious disease. Everything covered under non-communicable. And these things continue after the age of 25.
When you become, there are 4 stages: brahmacharya, grihastra, vanprastha, and sannyas. So when brahmacharya goes off, then you are busy with your life, family life. All the stress come to you, and most of the diseases are psychosomatic. There are three causes of diseases. First, most important, the pragya parad, doing wrong things knowingly. You know it is wrong, but you are doing. That is the pragya parad. Second is the excess use of your sense organs. There are 5 sense organs. If you are excess using your eye or your ear or your nose, you will bound to have a disease of that kind of system. And third is the because of the season, because of the infection, parinam kal. So what I mean to say, and the Charak very clearly says, to be healthy, you should remove the cause of the disease. So we are here to educate what are the causes of the diseases so that you are aware now. And earlier you talked about now the burger, now this fast food culture has come, how to prevent the society. The best thing is to bring awareness among the society that look, if you're a fast food eater, you are going to have this disease. And what is the science behind it? It is oxidative stress. It is this lipid peroxidation in your body which is killing you. So then they will be cautious because the science-driven knowledge has to be propagated, number one. And now, if you have a compulsion for the fast food because of your job, because of your time schedule, then there is another thing, fasting, intermittent fasting, or you should have a choice. In the morning you have taken a fast food, in the evening you should have the milk product or the salads and something like that. So fast food will be diluted, and then you should have a intermittent fasting for one day. That is under your control on the weekends. Second important thing, lifestyle, circadian rhythm of your body. There are vata, pitta and kapha cycles goes on. You are getting late, getting up, awakening late. That is a great problem. You have to control that, which is, if it is under your control, is well and good. If not, then try to cover it as 6 a.m. to 10 a.m. is a time of cough. And if you are sleeping, you are increasing the cough more, adding to it. So adding more cough is harmful. Cough is important. That's why the nature has given you the time 6 to 10. But in the same time, if you are having physical activity, the cough is not going above the normal. So keep everything in the normal. The circadian rhythm, vata, pitta and kapha cycle is there. One thing more I am emphasizing for the youth, from 10 p.m. to 2 a.m. in the night, no food should be eaten. No food at all. If you are eating your dinner 6 to 7 near the sunset time, it is wonderful if you cannot, but you should not eat after the 10 p.m. And sleep, eat 2 hours before sleep. These are the important principles which I am going to talk in this conference. And then basically I am going to talk on diabetes, because in diabetes, Ayurveda says there are 20 types of diabetes. In modern medicine, there are only 2 types of IDDM and NIDDM. But these 20 types means 16 are preventable. How to check it? That we are going to talk. These are the salient features which we will discuss in this. If you hungry after 10, you can have some liquid, milk or something? You can take, but try to not to take. If you are hungry, it means you have not taken your dinner properly. Adjust your dinner timing, adjust your dinner quality, so that you should not feel hungry after 10 p.m. 10 to 2 p.m., your liver is silent. Your liver wants to detoxify. Liver has a 2 functions: detoxification and digestion. So digestion part is he has done for the whole day. Give him time for cleaning your body. If you are hungry, this means you should not, for one day you feel hungry, then next day you balance your dinner quality and time. Thank you very much, Yamini Bhushan Tripathi ji. And for our subscriber and readers, Yamini Bhushan Tripathi ji and Vaidya Sushil Kumar Dubey ji are here in Arsha Vidya Gurukulam, and he is taking special classes on 21st on Ayurveda Introduction, 22nd and 23rd Wellness through Ayurveda.
And if you guys want to attend this, please call Arsha Vidya Gurukulam, Bimla ji at 570-656-0193. Again, call Vimla ji at 570-656-0193. Thank you very much. तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड 3 लोगों से चलती है, सूर्य चंद्रमा हवा, उसी तरह से हमारी बॉडी में वात पित्त कफ के द्वारा होते हैं। लेकिन बात का अगर आप देखेंगे तो हमारा स्पेशली गैसियस स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और तीसरा सॉलिड स्टेट के थ्रू ये हमारे डिफाइन करती है कि बॉडी में किस एरिया में कोई समस्या हमारी है। और अगर देखा जाए तो हमारा दूसरा जो हमारा गैसियस होता है वही ही मूवमेंट का कारण होता है। तो मूवमेंट के कारण में ही हमारा वेदना, पेन कहीं भी बॉडी में होगा तो इससे हम इंडिकेट अपने नाड़ी के थ्रू देखते हैं। दूसरा आपका टेम्परेचर और तीसरा इन्फ्लेमेशन। यही 3 मैकेनिज्म आज भी हमारी है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन तीनों के बारे में हम बेस्ट होता है कि चूंकि आहार, तीनों सब पिलर्स इसके हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहारम महाऔषधि कहा गया है, मीन्स डाइट इज ए सुपर मेडिसिन। अब डाइट भी 2 तरह की होती है, एक शारीरिक डाइट आपका और एक मानसिक डाइट। तो मानसिक डाइट हमारी जो अध्यात्म हुआ या हमारा मंत्रोच्चारण हुआ, ये मन के हमारे दृढ़ इंद्रिय विकारणम, स्ट्रांग डिसीजन लेने की क्षमता अगर हमारी बॉडी में होती है तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। फिर आहार की मात्रा, आहार मात्रा अग्नि बल अपेक्षणी, किस तरह से खाना, आप उतना खाने की मात्रा फिक्स नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है। उस प्रकृति और अग्नि के आधार पे हमें मात्रा जितने में भूख लगे और पेट साफ हो, खाना पच जाए, उतनी मात्रा, इन सब के बारे में हम बताएंगे। और स्पेशलिटी मेरा जो विषय है वो नाड़ी परीक्षा का है, क्योंकि नाड़ी परीक्षा एक पुरानी पद्धति थी हमारी। ये पुरानी पद्धति लगभग लुप्त हो जा रही थी, परंतु कुछ समय पहले हम लोगों ने भारतवर्ष में, हमारे फॉर्मर डीन प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी उसमें डीन थे, इनके तहत हमने अभियान चलाया कि ये जो लुप्त हो रही है विद्या, इसको पुनः हमें स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे भारत सरकार को हम लोगों ने पत्र लिखा और सरकार ने पूरे देश में नाड़ी परीक्षा पहले साल से ही बच्चों को सिखाने के लिए पार्लियामेंट से पास किया गया और आज पूरे देश में फरवरी 22 से हमारे यहाँ से लगभग चालू हो गया जो नाड़ी परीक्षा के बारे में विधा बताने का लोगों को। ये नाड़ी परीक्षा हमारी स्पेशली देखिए, ये 3 तरह के हमारे नाड़ी होते हैं और तीनों में देखिए वात की नाड़ी हम अपने इंडेक्स फिंगर से दिखाते हैं, पित्त की नाड़ी अपने मीडियम से और रिंग फिंगर से हम कफ को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि इनका स्पेसिफिक एक लोकेशन होता है कि करस्य अंगुष्ठ मूले, हाथ के जस्ट रूट पे आप देखेंगे तो यहाँ स्टेलॉयड प्रोसेस हल्का सा उठा हुआ है, यहाँ पहली फिंगर हमारी होनी चाहिए, उसके नीचे दूसरी और उसके नीचे तीसरी फिंगर। इन तीनों फिंगर को यहाँ पे प्लेस होती है और 3 बार पुटअप करके खाली पेट, क्योंकि खाना खाने के बाद ही हमारे दोषों की कंडीशन बनती और बिगड़ती रहती है, इसलिए हम स्पेसिफिक पॉइंट पे एक प्लेस करके देखते हैं खाली पेट में, फिर दोषों की कंडीशन और दोषों के बाद दोषों की सब टाइप 5 टाइप्स हैं, इनके 5 प्रकार हैं और 5 प्रकार के 5 स्थान हैं। तो ये 5 स्थान में आप डायग्नोस करते हैं कि किस तरह से हम इसको डायग्नोसिस में ले आ करके आगे बढ़ाएं। और आजकल मशीन भी बनी है, अभी एक IIT कानपुर ने एनपल्स मशीन बनाई है, तो उस मशीन से हम लोग कंफर्मेशन भी करते हैं कि जो हम मैनुअल देख रहे हैं पहले ही पेशेंट को हम बताते हैं कि भाई देखिए ये है, और फिर मशीन से उसका कंफर्मेशन करते हैं। तो इससे दोनों होता है कि एक साइंटिफिकली हो रही है और दूसरा रोगों को बचाव का एक अच्छा माध्यम है। और हमें लगता है कि अगर इस पद्धति का, जिस तरह से योगा पूरे देश में फैला और योगा भी आचार्य चरक ने हमारे एक चैप्टर में बताए हैं, तो अगर हम पूरी आयुर्वेद को अगर हम बताते हैं उस पद्धति से, तो हम काफ़ी अच्छी वेलनेस की तरफ पूरी दुनिया को लेके जा सकते हैं। ख़ासतौर से अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा है, अगर अमेरिका का इस पे सहयोग मिलता है, भारत और अमेरिका के साथ मिलकर के ट्रेडिशनल मेडिसिन की हमारी व्यवस्था को, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि जितनी लोगों की 2 ही समस्याएं होती हैं, या तो चिकित्सा होती है या शिक्षा होती है, इन दोनों से खर्चा अगर आदमी की बच जाए तो हमें लगता है काफ़ी परिवार को चलाने में अच्छा उपयोगी ये हमारे लिए हो सकता है कि उनका बेचारे मन से और शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। ये हमारा इस उद्देश्य है इसका करने का, इस प्रोग्राम का। अभी आप जो है
नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर भी बात करने वाले हैं क्लास में, थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, जो करंट में हम लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और रिसर्च में जो हम लोगों का अभी एक किताब हम लोगों ने इसी नॉन कम्युनिकेबल पे बचाने का एक छोटा सा प्रयास किया कि हम किस तरह से इसको हम आयुर्वेद के आधार पे आहार का क्रम कि जो डाइट का सीरीज होना चाहिए वो कहाँ से शुरू होना चाहिए और कहाँ ख़त्म होना चाहिए, अगर इस पे हम करते हैं तो हमें लगता है काफ़ी अच्छी हम उसमें लाभ पा सकते हैं। देखा जाए तो हमारा जो कहा गया है, शास्त्र लिखता है कि आदौ मधुरम भुंजीत मध्य अम्ल लौड़म च से शांति कटुदित कसाय रस, और आदौ फलम भुंजीत, खाने की शुरुआत अगर हम मीठे से करते हैं, मीठे फल से शुरुआत करते हैं पहले, तो उससे जो एक साइंस का इसमें है स्कोर कि साइंस में जब हमें भूख लगती है तो ब्रेन में ग्लूकोज कम होने पे हमें भूख लगती है। अगर हम पहले ही फल का जूस ले लिए तो वहाँ सैटिस्फैक्शन सेंटर में जाकर के एक इंडिकेशन सिग्नल जाएगा कि डोंट ओवर ईट, और डोंट ओवर ईट से डोंट ओवर वेट, और डोंट ओवर वेट से टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक पहली हमारी जो व्यवस्था है ये हो सकती है। और लास्ट में जो सूप हम पहले पीते हैं, अगर उस सूप को हम लास्ट में पीते हैं तो चूँकि हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है जो कि अंत में कटु तिक्त कषाय पीना चाहिए। तिक्त और कटु रस का काम है दीपन, पाचन और विसर्जन, मतलब टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। आप डिटॉक्स जब टॉक्सिन्स हम ले लेंगे तब ना उसकी आवश्यकता पड़ेगी कि डिटॉक्सिफिकेशन हो, डाइजेशन हो। तो पहले अगर हम सूप पीते हैं तो हम हंगर सेंटर को और एक्टिव करते हैं। उस हंगर सेंटर से क्या होगा कि ओवर ईटिंग, ओवर वेट एंड टू प्रमोट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो एक हमारा मेन जो परिकल्पना है, प्लस इसके स्थान पे एक जो लास्ट में इसमें हमारा खाने का हम लास्ट में बताया हुआ है कि सारा हमने पूरा इसमें दिखाया है स्टेप बाय स्टेप की भाई हमने अभी किया भी और हम लोग अभी फॉलो भी कर रहे हैं पूरा। इसको आप देख सकते हैं आसानी से कि सारे स्टेप बाय स्टेप श्लोक के साथ रेफरेंसिंग है हमारी, और रेफरेंसिंग में अंत में एक हम लोगों ने बताया है कि दीनांते स्वस्थ और वेलनेस रहने के लिए दीनांते पिबेत पेय, दिन के अंत में अगर हम दूध पी रहे हैं, निशांते पिबेत बारी, सुबह उठते ही हम पानी पी रहे हैं, एंड भोजनांते पिबेत तक्र, अगर भोजन के अंत में हम मट्ठा पी रहे हैं दोपहर में, दोषा कदाचिन, फिर दोष कभी कुपित नहीं होता, और दोष कुपित होकर के ये वात पित्त कफी हमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो 2 स्टेप आपके माध्यम से जा रहा है अगर अमेरिका के लिए, और वो भी हमारा टेक्सचुअल जो कहा गया है, तो शायद ये बहुत ही उपयोगी होगा समाज के लिए, जन के लिए और विश्व के लिए। बहुत बढ़िया। मेरे को एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है सुशील कुमार जी, अभी जो है आपने पाचन शक्ति और खाना पौष्टिक होना चाहिए इस बारे में सब बताया, पर अभी जो जैसे कार्य चल रहा है हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में तो अक्सर है, इंडिया के बाहर, कि लोग बहुत व्यस्त हैं, घर पे खाना पौष्टिक नहीं बनाते और फास्ट फूड पे ही निर्भर है। अभी लोग बाहर खाना ऑर्डर करते हैं, घर पे आ जाता है। आप उसके बारे में क्या सलाह देंगे? देखिए, चूँकि जो आज आवश्यकता है लोगों को, उस आवश्यकता के आधार पे हम उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन करने का प्रयास कर सकते हैं कि यदि जो फास्ट फूड है और जिसकी जो आदत पड़ती जा रही है ना, हमारे टंग्स पे भी एक अभी मैंने सोचा कि जो आपके बनते हैं कि जो हम खाना शुरू करते हैं वही ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको हम अगर तुरंत तो बदल नहीं सकते, लेकिन ग्रेजुअली इसको हम 7 डेज 28 डेज पे अगर बाहर आप जा रहे हैं खाने पे तो ज़्यादा अच्छा है कि फल तो मिलता है आसानी से लोगों को, अगर फल बेस पे फल पे रहते हैं। और खाना खाने के लिए जो हमारे यहाँ कहा गया है, आजकल काफ़ी अमेरिका से सूचना हमें भारत में भी मिला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो हमारे यहाँ कहा गया है कि एक काल भोजन आयुष्य करणाम, एक बार अच्छा खाना खाना चाहिए, दोबारा हल्का फुल्का कुछ खाना चाहिए, ठीक है, हल्का खाना, हल्का रात का खाना हल्का होना चाहिए। तो उस खाने में हमें लगता है कि अगर हम फल पे और कम खाने पे फोकस करेंगे, और उससे अच्छा कि हम जो आपके ड्राई फ्रूट्स हुआ कुछ, और साथ में ही कभी कल के तो फास्ट फूड हम लेंगे बिना फास्ट फूड का एक चल गई है जो कल्चर, उसको हम धीमे धीमे कम कर सकते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। प्लस लैया चना
या जो भी हमारे आज के सामान्य चीज़ें हैं, तो हमें लगता है कि खाना कम खा करके लोग ज़्यादा बीमार नहीं हैं, ज़्यादा खा करके बीमार हैं। तो कम खाएं, गम खाएं, स्वास्थ्य के लिए हित कर पाएं। प्रिवेंटिव मेडिसिन आयुर्वेदा के बारे में आप क्या बोलेंगे? आप क्या सलाह देंगे कि डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए आयुर्वेदा की मेडिसिन चल कंटिन्यूसली लेते रहना चाहिए, जिससे आप कोई भी आने वाली डिसीज को प्रिवेंट कर सके? अब देखिए यहाँ पे मैं कहा गया है कि बता दिया मैंने आपके आहार के बारे में कि आहार सुपर मेडिसिन है। ये भी कहा गया कि पथ्य सती गदार्थस्यम किमी औषध निसेवते। अगर आप सही खाना खा रहे हैं तो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम गलत खाना खा रहे हैं तब भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम गलत खाना खाएंगे उतना दवाई खा के बराबर कर लेंगे। इसके अलावा अभी जो हम लोगों ने वेलनेस के लिए आपका जो प्लान किया है अपने भारत में, मैंने अभी इसको प्रस्ताव रखा है कि जैसे जो रसायन नहीं होती हैं, हर व्यक्ति के लिए एक छोटा सा 40 साल के बाद में, जैसे आप अपने अभी 5 प्लांट हमने लॉन्च किया है देश में लगाने के लिए, कि अपने घर में 5 प्लांट लगाएं और उससे आप हेल्दी लाइफ पाएं। तो वो है, उसमें से एक तो अश्वगंधा है, अश्वगंधा का पेड़ आप अपने घर में लगा करके उसकी चटनी के रूप में, अगर बल ताकत स्टेमिना कमी है तो अश्वगंधा की पत्ती की चटनी खाएं। अगर उसके अलावा आपका गिलोय पूरे दुनिया में हमारा प्रचारित हो चुका है, तो गिलोय ईजिली अवेलेबिलिटी होती है, तो गिलोय को हम क्या काम करते हैं कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम उपयोग कराते हैं। अगर लंग्स आदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो तुलसी की पत्ता लगा होता है, उसकी चटनी या चाय में मिला के पी सकते हैं। उसके अलावा एक लेमन ग्रास होता है, जो लेमन ग्रास को हम ज्वरांकुश बोलते हैं, मतलब ज्वर पे जो अंकुश लगाए, ज्वर पे जो अंकुश लगाए, ज्वर होने न दे, बुखार न होने दे। और आप जानते हैं कि जितने दुनिया के हमारे रोग हैं, डेंगू, स्वाइन, कोविड, वायरल, सब में ही बुखार ही आता है। तो अगर लेमन ग्रास को चाय में मिला के पीते हैं तो हमें लगता है कि बुखार से काफ़ी स्तर से बुखार नहीं होता, उससे आपकी जब बुखार नहीं होगा तो आपके दुखन है। इसके अलावा जो 40 साल 50 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, उनका जो ये हमारा ब्रेन है, कहा गया है ना कि प्राणः प्राणभृतायत्रम श्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमानाम अंगानाम शिरस्तद्य विधीयते। ये प्राणियों का प्राण हमारा उत्तम अंग है, जिसको जो कहा जाए अगर सिंपल भाषा में तो राजधानी है। और अगर राजधानी को हम ठीक रख रहे हैं तो नीचे का सारा हमारा अपने आप डिस्ट्रिक्ट ठीक रहेगा। तो इसके लिए जो बेस्ट हमारी बुद्धि की बढ़ाने वाली रसायन है, मेध्य रसायन हमारे यहाँ कहा गया है चरक में, वो कहा गया है कि मंडूक पर्णेश्वर से मंडूक पर्णी को लीजिए, या मुलेठी खा सकते हैं, या गिलोय ले सकते हैं, और सबसे बड़ी शंख पुष्पी होती है। तो अगर 50 साल के व्यक्तियों को शंख पुष्पी की चटनी रेगुलर अगर हम खाते हैं, जैसे आप पुदीना चटनी खाते हैं तो शंख पुष्पी की चटनी ना मिल पाए तो उसका पाउडर हो, उसका चटनी बना के खाएं, तो शायद आपके जितने जीरियाटिक प्रॉब्लम है उनमें बचने में काफ़ी लाभ हो सकती है। ये 5 प्लांट हर घर में बोएं और प्राइमरी पीएससी की तरह इसका हेल्प कर सकते हैं कि भाई प्राइमरी लेवल पे हम अपने घर में कहाँ से इनको बचाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो दिस मैसेज इज फॉर आवर सब्सक्राइबर in Arsha Vidya Gurukulam. There is a Ayurveda conference happening from June 21st to 23rd, in which Professor Yamini Bhushan Tripathi ji and Vaidya Sushil Kumar Dubey ji आपको इस सबका ज्ञान देंगे। क्लास है, उसकी कॉन्फ्रेंस है, तो उसके लिए आप आर्षा विद्या गुरुकुलम विमला जी से फ़ोन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1570-656-0193। अगेन विमला जी को फ़ोन कीजिए आर्षा विद्या गुरुकुलम पे 1570-656-0193। थैंक यू।